Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sri Ambika Online Classes. So today we are going to do a poem from First Flight book named The Dust of Snow. So we are going to read. Today I am going to explain to you the summary and the line by line meaning of poem Dust of Snow from our First Flight book. रिटर्न सीबीएसई एनसीईआरटी की क्लास 10 की हम लोग बुक फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उससे हम लोग आज एक पोएम समझने वाले हैं और उस पोएम का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। तो पहले आप लोगों को मैं समझाना चाहूंगा दैट वी हैव टू बिफोर रीडिंग एनी पोएम वी हैव टू नो अबाउट सम पॉइंट्स which are first one is writer. So because it is a poem, so that is why it will be required. Okay, they have to know about. Then after characters and its meaning, what poem want to give us. We can say that meaning of message also. What is the message of the poem? So we have to learn about these three things. The poet, who is the poet of the poem? So the poet of this poem is Robert Frost. Who is Robert Frost? So this was our first point. And characters are the first one. Who poet himself? With the poet here, Robert Frost. The second one is, as you can see here, crow, and then the third one is, you can see here, here is a tree, that is a hemlock tree. Okay, this is the poisonous tree. Which is this tree बेटा? Poisonous होता है ना, poisonous tree होता है. ये देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है. ये poisonous tree है ना? So we are going to learn about our inauspicious things. So these are the things which we have to learn about. Then after I am going to explain you the summary of the poem and the explanation that what poet want to say by this poem. Okay, so I hope you have done. Now let's read and understand the poem. What poet want to say us. So poet is going on the way. Poet कहीं जा रहा है, रास्ते में जंगल से गुजर रहा है. Then what happens with him? Now he is not in a good mood. He is upset. Okay. So what happens with him? Okay, we have to read about it. The way a crow swooped down on me. The dust of snow from a hemlock tree. So here I have explained you earlier about this. Earlier I explained you hemlock tree. It is here, and the crow is also here. Okay, this is also a hemlock tree. A crow is sitting on the where beta? On a by a tree. That is hemlock tree. Hemlock tree पर बैठा हुआ है. So what happens when he was moving? So let's read. These are the first 4 lines. Here are the meanings of soak means shake. Shake मतलब डाल देना, उड़ा देना. Hemlock means what? What is a hemlock? Hemlock is a tree. That is a pinus tree with a small white flowers. Yes, you can see some small white flowers. So let's understand the explanation of the poem. The poet is set in a scene where the poet is in a bad mood and walking by a tree. This poem is set in a scene कि ऐसे सीन में पोएट को सेट की गई है कि पोएट क्या कर रहा है बेटा? एक बेड मूड में है और वॉकिंग कर रहा है. एक पेड़ के पास से निकलकर जा रहा है. और वो पेड़ कौन सा बेटा? दैट इज अ हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री इज अ poisonous tree as I explained you earlier. As he passes by, जब वो वहां से निकलकर जाता है, a crow happens to throw some snow dust on him. अब ऐसा नहीं कि मार के फेंक रहा है. He was sitting, as you can see, it is sitting. The poet is passing from there. Okay, Robert Frost was passing from there. He is sitting on a branch
ब्रांच पे बैठा, आपको दिखा दे रहा। तो ये जो हेमलॉक ट्री होता है वो बहुत ही ठंडे एरिया में होता है, तो वहाँ पर क्या होती है, बर्फ होती है, बर्फ गिरती है पेड़ के ऊपर भी, पूरे पेड़ तुम लोगों ने देखा ना बर्फ से ढके हुए रहते हैं। तो ये बर्फ ऑलरेडी इस पर है यहाँ पर, तो जब ये पेड़ पे बैठा होता है, अब ये कंडीशन क्लियर नहीं है कि उड़ के जा रहा है या उड़ के आके बैठा, जा रहा है या फिर आया था। तो वो क्या होता है, जैसे वहां पे आता है बैठता है, अब वहां पे सडनली पॉइंट का भी निकलना होता है, गुजर आता है, जिस ब्रांच पर वो आकर बैठता या उड़ना चाहता था, तो ब्रांच हिली, डाली उसकी जो टहनी थी वो हिली, और इस कारण क्या हुआ, उसके ऊपर जो डस्ट और स्नो था, बर्फ है ना, वो स्नो उसके ऊपर गिर जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। Whether it falls on his head or shoulder, या तो उसके हेड पे गिरी है या फिर शोल्डर पे गिरी, ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म यहाँ पर नहीं बताया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। Whether it falls on his head or its or shoulders is unknown as there is no specific mention in the word। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि सिर पे गिरा, शोल्डर पे गिरा, ये कंफर्म नहीं है। Also the readers are left in doubt about the bird स्पेसिफिक एक्शन, और ये जो बर्ड का स्पेसिफिक एक्शन है, जैसे कि मैंने बताया, क्या बताया मैंने आप लोगों को बेटा, कि वो उड़ के गया या फिर उड़कर आ रहा था, या तो वो गया या फिर आ रहा था, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये यहाँ पर क्लियर नहीं है। वेदर द crow was लैंडिंग की लैंडिंग कर रहा था, शिवरिंग विद कोल्ड, कोल्ड से कांप रहा था, कांपते हैं तो वो क्या कर रहा था, कांप रहा था, इस कारण जो ब्रांच थी हिल गई। रीएडजस्टिंग इटसेल्फ ऑन द ब्रांच, अपने आप को रीएडजस्ट कर रहा था, और टेकिंग ऑफ कर रहा था। इट हैपेंड टू सेंड सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो, और इसी कारण ये जो भी कंडीशन थी, जो भी एक्शन था, उसके कारण क्या था, कुछ पार्टिकल्स किसके आ जाते हैं, आधार के ऊपर, पॉइंट के ऊपर आ जाता है। Here are the two agents of nature, यहाँ पे नेचर के टू एजेंट्स होता है, क्या क्या है, the hemlock tree and the crow are signifiers of sadness। देखो क्या होता है कि हम लोग कौवे को और हम लोग ट्री, क्योंकि तो पाइजनस है, कौवे को किसका प्रतीक मानते हैं बेटा, किसका सिग्निफायर मानते हैं, डेथ का सिग्निफायर मानते हैं। देखो ना किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग जैसे स्टार्ट डालते हैं तो वो आगे खाएगा, ऊपर हम लोग छत पे डाल देते हैं ना, खाना खीर वगैरह बनाते हैं, ऐसा कि क्या होगा, तो वो आगे उसको खाएगा, डेथ होने के बाद पिंडदान करते हैं, कौवे आते हैं, तो ये हमारा डेथ का प्रतीक हो गया, सिग्निफायर है। और हम लोग ट्री ऑलरेडी ये तो पाइजनस है ही, हम लोग ट्री ऑलरेडी क्या बेटा, पाइजनस है, तो ये क्या होगा, ये क्या है हमारे लिए, सिग्निफायर्स ऑफ सैडनेस, सैडनेस आ जाती है ना। एंड ग्लूम जस्ट लाइक द पोएट्स मूड, और ये भी ग्लूम की तरह था, पोएट का मूड भी ऐसा ही था कुछ। वाज इन द ओपनिंग सीन, ये ओपनिंग सीन की बात हुई यहाँ पर, किसकी बात हुई बेटा, ये यहाँ पर हमारे ओपनिंग सीन की बात हुई, जो कि हम लोगों ने अभी समझा, मैंने आप लोगों को अभी क्या किया, वो एक्सप्लेन किया। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, हमारी जो हमारा स्टेंजा है, सेकेंड स्टेंजा, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ सेकेंड स्टेंजा में क्या था। आई होप आप लोगों को स्टार्टिंग की 4 लाइन समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट 4 लाइन देखते हैं। हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। क्या बता रहा है पोएट, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, कि इन्होंने क्या किया, इसके कारण मेरे जो हार्ट था उसमें चेंजेस आया, मतलब मेरे मूड में चेंजेस आया, किस कारण, क्योंकि जो बोनेस के ऊपर डस्ट और स्नो क्या कर दिया था, सेक कर दिया था, इसका कारण इसका क्या हो गया, पूरा का पूरा दिन चेंज हो गया, इसका पूरा का पूरा मूड चेंज हो गया। कैसे पूरा का पूरा मूड चेंज हो गया, हम लोग को भी समझने की यहाँ पर कोशिश करते थे। यहाँ पर ड्यूड का मीनिंग दिया हुआ बेटा, किसका, ये जो ड्यूड है ना उसका मीनिंग दिया हैड इन देखिए, टेंशन में होना है ना, प्रॉब्लम है ना, जो मूड हमारा सेट नहीं होता ना, गुड नहीं होता, उसको हम लोग ड्यूड बोलते हैं, सेड होना, अनहैप्पी होना। 4 रीजन्स अननोन, अननोन रीजन्स है। द अदर वाज हैविंग अ टेरिबल डे, पता नहीं है क्यों, किस कारण, जो अदर है पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो क्या है बेटा, हैविंग अ टेरिबल डे, मतलब उसका दिन अच्छा नहीं, हम लोग कभी हमारा साथ में कोई बुरा काम हो जाता है, बुरा कुछ हो जाता है, हम लोग बोलते हैं अरे आज का दिन तो खराब ही है, पूरा का पूरा दिन खराब है। तो यहाँ पे आथर के मतलब पोएट के, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के क्यों सेड थे, ये कारण स्पष्ट नहीं, क्लियर नहीं है, अननोन रीजंस है। बट द falling of the snow on his head lifted his mood instantly, instantly मतलब at the same time। what happens with the, कि जो स्नो उसके ऊपर लिफ्ट हो गई थी, सेक हो गई थी इसके हेड पे, देखो हेड या शोल्डर पे ये कंफर्म
नहीं है। तो ये क्या हो गया, उसके मूड में चेंजेस आ था वहाँ पे। He had already spent his day in a bad mood, कि कुछ दिन था जो उसने अपना पूरा इस बैड मूड में चेंज कर दिया था। But the rest of it was saved by the crow and the tree। और जो नेक्स्ट जो बचा हुआ दिन था, सपोज कि उसका पूरा दिन की ये जो सुबह से निकला था तो 1 बज रहे थे, जब ये ट्री के पास में आया तो 1 बज रहे थे, तो 1 बजे के पहले इसका जो भी मूड था वो अपसेट था। लेकिन अब 1 बजे के बाद में जब इसके ऊपर डस्ट गिरी, डस्ट और स्नो गिरा, तब इसको क्या हुआ, इसका मूड चेंज हो गया और वहां से इसका टाइम जो ड्यूड था, ये टेंशन में था, मूड ठीक नहीं था, अपसेट था, अब इसका मूड हैप्पी हो गया। तो बचा हुआ दिन इसने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ये बताया वहां पे, अ डे आई हैव एंड सेव्ड सम पार्ट मतलब आधा दिन तो बचा, जो भी बचा हुआ दिन था। Generally, Amlopri and Crow are used for negative references, but the poet used them beautifully to portray that inauspicious things can bring joy and happiness too। तो inauspicious मतलब क्या बेटा, हमारे जो पौराणिक होते हैं ना, धार्मिक चीजें होती हैं, हम लोग inauspicious मानते हैं कि ये अच्छी नहीं है, जो अच्छी नहीं है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा पोर्ट्रे का मतलब भी होता है यहाँ पर शो करना। तो हम लोगों को बहुत अच्छी ब्यूटीफुली वे में बताया है कि जो नेगेटिव मान्यता है हमारी किसी के प्रति भी, कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया क्या होगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अरे यार बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो ये पौराणिक मान्यताएं हम लोगों ने बना के रखी है। ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग चीन की बात करें, अगर बिल्ली निकल के चली जाए रास्ते में से तो उसको पवित्र मानते हैं। उसको क्या मानते हैं बेटा, वो लोग पवित्र मानते हैं। तो ये हमारी धारणा है, हमारी मानसिकता है, जो हम लोगों ने रीति रिवाज बना के रखे हैं। One must not take things for granted and should be open and accept whichever way the nature chooses to bless us। कि हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है। One must not take things for granted and should be open and accept whichever way the nature chooses to bless। कि जो नेचर होता है उसी के अकॉर्डिंग चीजें होती है। हम लोगों ने बस के लिए पुरानी मान्यताएं बनाकर रखी है, लेकिन हम लोग जो नेचर है, चाहे हम लोग के लिए बुरा, हम लोग ऐसा मानते हो, हमारे मन में उनके लिए धारणा ऐसी हो कि बुरी है, लेकिन सच में वो जो नेचर की है, जो नेचर की चीजें हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही शानदार है, जो हम लोगों को समझने की जरूरत है, हम लोगों को समझना होगा। सो थैंक यू ऑल, वी हैव लर्न अबाउट द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो in very better way, and I have explained you the line by line with the hard words, and the explanation also is written on the screen that you can see and watch that what is the explanation. Okay, so thank you so much, have a nice day. If you like our channel, if you like this video, so please do not forget to subscribe our YouTube channel. Thank you so much, have a nice day.